یہ پہاڑی سلسلہ دنیا کے کسی نقشے پر دکھائی نہیں دیتا، لیکن پھر بھی یہ دنیا کے 3 ملکوں کے درمیان تنازع کا سبب بنا ہوا ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 700 کلومیٹر ہے اور اس کے بارے میں سب سے پہلے تحقیق کس نے کی؟ دنیا کا سب سے پر اسرار پہاڑی سلسلہ کسی نقشے پر نظر نہیں آتا۔ زمین کے مختلف علاقوں کو سمجھنے کے لیے کئی مقبول نقشے استعمال ہوتے ہیں جس میں دنیا بظاہر ہموار دکھائی دیتی ہے۔ ان میں سے ایک میر کیٹر پروجیکشن ہے، مگر آپ اس پہاڑی سلسلے کو یہاں نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح پیٹرز پروجیکشن اس سے بھی زیادہ مقبول اور درست متبادل نقشہ ہے، لیکن یہاں بھی آپ کو یہ پہاڑی سلسلہ نہیں ملے گا۔ گھومتے نقشے میں قطب شمال پر پلاسٹک کا ایکسل اسے چھپائے رکھتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں دیکھنے لائق کچھ بھی نہیں، لیکن یہی وہ مقام ہے جہاں آپ کو لومانوسو ریج کا پہاڑی سلسلہ ملے گا۔ یہ سائبیریا سے شروع ہوتے ہوئے پہلے گرین لینڈ سے گزرتا ہے اور کینیڈا تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ 1700 کلومیٹر سے زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ اس کا بلند ترین مقام سمندر کی تہہ سے 3.4 کلومیٹر کی اونچائی پر موجود ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ زیادہ مقبول نہیں ہے، لیکن یہ 3 ممالک کے اس تنازع کا مرکز بنا ہوا ہے جو قطب شمال کے گرد سمندری علاقے پر اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ڈینمارک کے مطابق یہ پہاڑی سلسلہ اس کے خود مختار علاقے گرین لینڈ کا حصہ ہے۔ روس کے مطابق یہ علاقہ ایک سائبرین جزیرے کا حصہ ہے اور کینیڈا کے مطابق یہ اس کے ایلزیمیئر جزیرے کا حصہ ہے۔ تو کس ملک کی بات حقیقت کے زیادہ قریب ہے؟ یہ پہاڑی علاقہ 1948 میں سوویت یونین کی جانب سے آرکٹک کے مرکز پر ابتدائی کھوج کے دوران دریافت کیا گیا تھا۔ سمندری برف پر اپنے خیمے سے سوویت سائنسدانوں کو معلوم ہوا کہ شمال کی جانب سے نئے سائبرین جزیروں پر پانی کی گہرائی کم ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ سمندر 2 حصوں میں ایک پہاڑ کے ذریعے بٹا ہوا ہے۔ سائنسدان پہلے سمجھتے تھے کہ سمندر میں مسلسل ایک طاس ہے۔ سن 1954 میں سائنسدانوں نے ایک نقشہ شائع کیا جس میں زیر سمندر پہاڑی سلسلے کو دیکھا جا سکتا تھا۔ انہوں نے 18ویں صدی کے روس شہر میغائل لومانوسوف کا نام دیا، جس نے قریب 200 سال قبل آرکٹک بیسون میں ایسی خصوصیات کی پیش گوئی کی تھی۔ آج یہ اس کی نمایاں خصوصیات ہے۔ اس پہاڑ کی دریافت کے 70 سے زیادہ سال بعد بھی یہ دنیا بھر میں نقشوں پر ظاہر کی گئی سب سے بری سطح سمندر میں سے ایک ہے۔ یہاں تک کہ آج کے جدید بحری جہاز آرکٹک کے پانیوں میں طاقتور سگنل پھینکتے ہیں، لیکن اس پہاڑ کے کچھ 100 میٹر تک کا ہی پتہ چل سکا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے ایتھلیٹس کے ٹریک پر ایک کنارے سے دوسرا کنارہ نظر آئے۔ اس علاقے کے بارے میں چارٹس پر زیادہ معلومات نہ ہونے کی وجہ یہاں نقشے کے سلسلے میں ہونے والے نئے دوروں میں ہمیشہ نئی باتیں سامنے آتی ہیں۔ کینیڈا سے آرکٹک کے نقشے کے سلسلے میں آنے والی ٹیم کے سربراہ پولا ٹریگولینی کا کہنا ہے کہ یہ ہر مرتبہ ایک نئی اینک پہننے جیسا ہے۔ آپ کو علم نہیں ہوتا کہ اب کیا ڈھونڈنے والے ہیں۔ لیکن یہ پہاڑی سلسلہ کیسے بنا، یہ سمجھنے کے لیے چوٹی اور پہاڑی سلسلے کے وادی کا نقشہ بنانا ناکافی ہے۔ 3 ملک اس بڑے علاقے کے دعوے دار ہیں۔ یہ سمجھنے کے لیے سائنسدانوں کو پہاڑ کا ایک چھوٹا ٹکڑا حاصل کرنا ہوگا۔ اس پتھر سے پہاڑ کی ارضیاتی بنیاد کے بارے میں پتہ چل سکے گا۔ کرسٹن نیڈسن ڈنمارک اور گرین لینڈ میں ارضیات کے سروے کے لیے ایک جیو فزسٹ ہے۔ وہ پہلے شخص تھے جس نے اس پہاڑ کا ایک بڑا پتھر حاصل کیا۔ کینیڈا اور روس کے سائنسدانوں نے بھی اس پہاڑی سلسلے کے پتھروں کا جائزہ لیا ہے، لیکن یہ جاننا مشکل ہے کہ انہوں نے واقعی اس پہاڑ کا پتھر حاصل کیا ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ وہ اس پہاڑ کی بجائے ارد گرد بڑے پتھروں کا جائزہ لے رہے ہوں جو وہاں کہیں سے بھی آئے ہوں۔ آرکٹک کے ساحلوں پر موجود برف کی تہوں کی وجہ سے آرکٹک کی سطح سمندر پر کئی طرح کے پتھر پڑے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ گرا ہوا پتھر وہاں سائبیریا کے برف کے پہاڑ سے آیا ہو، یا ہو سکتا ہے یہ پتھر شمالی کینیڈا سے سفر کرتا ہوا غلطی سے اس پہاڑ پر گر گیا ہو۔ اس طرح نتائج غلط ہو سکتے ہیں۔ پانی میں سینکڑوں میٹر سے لے کر ہزاروں کلومیٹر تک موجود پہاڑی سلسلے کا پتھر حاصل کرنا مشکل ہو سکتا ہے، اور وہ بھی تب جب سمندر کے اوپر برف کی تہہ جمی ہوئی ہو۔ وہاں تک پہنچنا ہی مشکل کام ہے۔ نیڈسن اور اس کے ساتھیوں نے ایک روسی برف توڑنے والی مشین استعمال کی تھی جو ایٹمی توانائی سے چلتی ہے۔ اسے انہوں نے آرکٹک کی برف توڑنے کے لیے استعمال کیا۔ اس کے ساتھ سویڈن کی اسی نوعیت کی مشین اوڈن استعمال کی گئی۔ عملے میں ڈینش ریسرچر بھی موجود تھے۔ نیڈسن کی ٹیم اس پہاڑ کو 3 کلومیٹر تک کاٹنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ ایک ایسا پتھر بھی اپنے ساتھ لے گئے جو نارنجی رنگ کا
था और रग्बी की गेंद जितना बड़ा था। इनका कहना था कि इब्तिदा में किसी ने इस नारंगी और खाकी पत्थर पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं जानता था कि ये क्या है, तो हमने उसे काटना शुरू कर दिया। अंदर जो मिला इसकी तवक्को ना थी। हर तह पर लकीरें बनी हुई थी जैसे किसी दरख्त की हों। इन तहों में मैग्नीज ऑक्साइड की बड़ी तादाद थी जो सतह समंदर पर मिलती है, जहां ऐसे कई मादे मौजूद होते हैं। इसे बनने में हजारों साल लगते हैं। इससे इशारा मिला कि ये चट्टान का पत्थर है, ना कि कोई गिरा हुआ पत्थर। नेडसन ने बेरिलियम 9 और 10 यानी रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल करते हुए इस पत्थर की उम्र मालूम की। बेरिलियम 10 स्ट्रेटोस्फीयर पर बनती है, यानी सतह जमीन से 50 किलोमीटर ऊपर। ये रेडियो एक्टिविटी के बाद बेरिलियम 9 में तब्दील हो जाती है। दोनों की तनासब से नेडसन इस पत्थर की उम्र मालूम कर सकते हैं। इस पत्थर की कई तहों से इन्हें मालूम हुआ है कि इसकी तारीख 80 लाख साल पुरानी है। सबसे अंदरूनी तह सबसे पुरानी, जबकि बाहर की तह बिल्कुल न्यू थी। नेडसन के मुताबिक इससे साबित होता है कि ये चट्टान पोलर बेसन में, कुतबी बेसन में 80 लाख साल से इसी तरह मौजूद रहा है। ये बर्फानी दौर से भी ज्यादा पुरानी है। ऐसा लगता है जैसे मैं शर्लक होम्स हूँ जो खिड़की के बाहर मिले सुराग का पता लगा रहा हो। मैं साबित कर सकता था कि ये पत्थर लुमानो रिज का हिस्सा है, लेकिन नारंगी और खाकी सतह के नीचे रेत का पत्थर इस पहाड़ी सिलसिले के बारे में सबसे दिलचस्प मालूमात रखता था। इस पर मौजूद लकीरें इस वक्त बनी थी जब पहाड़ बनने का वाक़या पेश आ रहा था। जब पहाड़ बना तो मट्टी मादनियात में तब्दील हो गई। आपने इसी तरीके से हेडसन ने इसकी तारीख का पता लगाना चाहा, लेकिन इस मरतबा उन्होंने पोटाशियम का आइसोटोप इस्तेमाल किया। उन्होंने मादनियात की उम्र मालूम की, जिसका मतलब यही था कि वो इस पहाड़ की उम्र मालूम कर रहे हैं। इससे मालूम हुआ कि पहाड़ बनने का वाक़या 40 करोड़ 70 लाख साल कबल पेश आया था। मट्टी के जर्रों ने पहाड़ तख्लीक किया और ये इससे भी पुराने थे। इनकी उम्र 1.6 अरब साल थी। रूस, डेनमार्क और कनाडा पहले से समंदर के इन हिस्सों पर अपना हक रखते हैं और अपने साहिलों के पास इन तक रसाई रखते हैं। साहिली मुल्क एक खास मुआशी जोन कायम कर सकते हैं जो एक किनारे से 370 किलोमीटर तवील होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के समंदरों के कानून के मुताबिक इससे इन्हें मछलियां पकड़ने, इमारतें तामीर करने या कुदरती वसाइल हासिल करने का हक मिल जाता है। कानून के मुताबिक मुल्क इससे भी तजावीज़ कर सकते हैं अगर वो साबित कर सके कि सतह समंदर इनके बरे-आज़म का हिस्सा है। इसके लिए मुल्क को शवाहिद हासिल करना होंगे कि ये इनके मुल्क का वो हिस्सा है जो पानी में है। इससे मुराद है कि इन्हें साबित करना होगा कि ये सतह समंदर की कोई पहाड़ी चट्टान नहीं जो ज़ेरे आब है, वरना इसका इनके मुल्क की ज़मीनी रकबे से कोई ताल्लुक नहीं। नेडसन की मालूमात के मुताबिक ये सबूत है कि लुमानो की चट्टान ज़ेरे आब ज़मीनी हिस्सा है और ये कोई सतह समंदर से बनी हुई चीज नहीं। ये ऐसा है जैसे अटलांटिक के वस्त में चट्टान मौजूद है जो आइसलैंड से होती हुई अंटार्कटिका तक फैली हुई है। इसी मालूमात की तस्दीक दूसरी तहकीक में भी होती है, जैसे कनाडा में अर्दियाती सर्वे के सिलसिले में होने वाले तहकीक में जिसकी सरबराही जैक्सन ने की थी और इसमें जंजरों पर तहकीक हुई थी। नेडसन कहते हैं कि ये वाकई एक बरे-आज़म है। ये ऐसा ही बरे-आज़म है जैसा हम मशरिक ग्रीनलैंड में देखते हैं। ये ग्रीनलैंड का तसलसल है। हमारा बुनियादी नुक्ता यही है कि हमने पत्थरों को जमा किया है और साबित किया है कि ये चट्टान का हिस्सा है। हम समझते हैं कि वो क्या है और हम घर पर मौजूद हैं। हो सकता है ये चट्टान ग्रीनलैंड का हिस्सा हो, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ से देखेंगे तो ये रूस का तसलसल मालूम होगा। ऐसे पत्थर रूसी जजीरों पर भी मिले हैं। नेडसन के मुताबिक कनाडा में भी शवाहिद मिले हैं कि ये पहाड़ी सिलसिला इसके जजीरे का तसलसल है। ये हैरान कुन नहीं क्योंकि एल्समियर जजीरा ग्रीनलैंड के करीब है, जिस तक रसाई शुमाली सिरे पर 20 किलोमीटर चौड़ी गलीच से होती है। दर हकीकत ये मुमकिन है कि लुमानो रिज एक ही वक्त में रूसी, कैनेडियन और ग्रीनलैंड हैं। और दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं नक्शों की नई सिरे से तख्लीक। रूस, डेनमार्क और कनाडा की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की बरे-आज़म की हदूद की कमीशन को जाहिर किए गए मुतालबों में लुमानो रिज मरकजी किरदार अदा करती है। किसी मुल्क की कायम हदूद से 2500 मीटर गहराई तक अगर जमीन मौजूद है तो इस बुनियाद पर हदूद से तजावीज़ किया जा सकता है। अगर तीनों मुल्क इसी असूल का इस्तेमाल करते हैं तो कई इलाकों पर एक से ज्यादा मुल्क तजावीज़ कर जाएंगे। इसमें कुतुब शुमाली के
इर्द गिर्द 54,850 मुरब्बा नॉटिकल मील का इलाका शामिल है, जिसके दावेदार तीनों मुल्क हैं। तो आगे क्या होगा? क्या ये मुमकिन है कि इलाकाई तनाज़े पर तीनों आर्कटिक मुल्क आपस में लड़ पड़ेंगे? तो इसका जवाब नहीं होगा। अगर मुल्क मुश्तल होते हैं तो कई दिहाइयों तक अक़वाम मुत्तहिदा के तरीक़ेकार की पासदारी, जो मुश्किल होने के साथ साथ महंगी भी है, ज़ाया जाएगी। इन तीनों मुल्कों ने नक्शों पर अपनी लकीरें खींचकर अमन और तावन पसंद तरीका अपनाया है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के समंदर के कानून के ऐन मुताबिक है। आर्कटिक फाइव में इन ममालिक के अलावा अमेरिका और नॉर्वे शामिल हैं और ये अलामिया 2008 में वजूद में आया था ताकि आर्कटिक की सरहदों को सुलझाया जा सके। इसकी बदौलत हालात इस वक्त काबू में आए थे जब रूस ने कुतुब शुमाली पर 1 साल कबल अपना परचम लगा दिया था। दरअसल अगर बैन अक़वामी सतह पर सरहदी तनाज़ा पेश आता है तो अक़वाम मुत्तहिदा की सरहदों की कमीशन इसमें मुदाखलत नहीं करती। डरहम यूनिवर्सिटी में जोग्राफिया के प्रोफेसर फिलिप स्ट्रिंगबर्ग, जो बैन अक़वामी सरहदों की रिसर्च यूनिट के डायरेक्टर भी हैं, कहते हैं कमीशन कितनी है कि सियासत से दूर रहें, वो ज़मीनी खुद मुख्तारी के किसी मसले में नहीं उलझते। इस सिलसिले में फाकलैंड जजीरे या मलोजीन्स की मिसाल सबके सामने है। वो कहते हैं कि जैसे ही अर्जेंटीना की जानिब से मुतालबा कमीशन को मसूल हुआ तो बरतानिया ने एतराज कर दिया। कमीशन ने अर्जेंटीना की सरहदी दावे को महज बरआज़म की हदूद तक ज़ेरे गौर रखा। मुल्कों ने पुरअमन तरीक़ेकार का वादा किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस मसले में सियासी दिलचस्पी नहीं होगी। अब तक अक़वाम मुत्तहिदा की कमीशन ने तीनों मुतालबात पर कोई फैसला नहीं किया। लंदन में रॉयल हालवे यूनिवर्सिटी में जोग्राफिया के प्रोफेसर क्लॉस डोड्स के मुताबिक रूस ने 2001 में इस पर पहला मुतालबा दायर किया था और साल के आखिर तक मुस्बत तासर मिला था। कमीशन ने रूस को इंदिया दिया था कि वो इनके मुतालबे से हमदर्दी रखते हैं। ये रूसियों के लिए दिलचस्प बात है। 20 साल बाद इंतजार के बाद मुझे लगता है कि जो वो चाहते हैं इन्हें मिल जाएगा। ये इस बात की तस्दीक हो गई है कि बरआज़म की हदूद और ज़ेरे समंदर चट्टानें इनकी हैं। प्रोफेसर डोड्स कहते हैं कि इससे रूस मफाहत की अच्छी पोजीशन पर आ जाएगा। आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। सदर पुतिन किसी अजीम मकाम पर खड़े होंगे, इनके पास आर्कटिक का बड़ा सा नक्शा होगा और वो कहेंगे कि आर्कटिक हमारा है। ऐसे रवैये मुतवक्का हैं, लेकिन इन्हें कुछ सख्तियों से कबूल करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की कमीशन के पास कोई कानूनी इख्तियारात नहीं हैं। इसके नताइज सिर्फ सबूत की साइंसी दुरुस्ती पर मुबनी होंगे। कमीशन ये तजवीज़ नहीं करती कि नक्शे पर लकीरें कहाँ खींचनी हैं, ये सिर्फ सफारती सतह पर हो सकता है। प्रोफेसर डोड्स कहते हैं कि आपको लंबी सांस लेकर रूस से मुज़ाकरात करने होंगे। पुतिन ने जाहिर किया है कि आर्कटिक रूस की बका के लिए अहम है। मुझे लगता है कि मुज़ाकरात बहुत मुश्किल होंगे। मैं कनाडा और डेनमार्क के लिए पुरुम्मीद हूँ, लेकिन ये मुश्किल होगा। रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपने मुतालबे के हवाले से इतनी जुर्रत नहीं दिखाई जितनी वो दिखा सकता था। आज की वीडियो यहीं तक थी। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।